Hello students, this is Navdeep Kaur from Raikot Public School, Raikot. Today we will discuss about plus 1's biology. We were discussing in our previous video that the type of animal tissues. First type epithelial tissue we have discussed in that video, and today we will discuss next video that is next type, second type, connective tissue. In previous video we have discussed that there are four types of animal tissues. First one is epithelial, second one is connective, third one is muscle tissue, and fourth one is that neural tissue. Second type we will discuss in this video. Connective tissue. What is the meaning of connective? Connective means number of things are interconnected with each other. As the name indicates, they bind or link different tissues and organs together and support them. Means अलग-अलग ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂਸ ਨੇ ਜਾਂ organs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ bind ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ support provide ਕਰਦੇ ਆ. That's why we call these connective. Means ਇੱਕ connect ਹੈ, ਇੱਕ link ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. They are most abundant and widely distributed tissues in an animal body. क्यों सब तो ज़्यादा होंगे? क्योंकि अपनी बॉडी के जिन्ने ऑर्गनस ने उन्होंने एक दूसरे नाल कनैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के नाल कनैक्ट कर रहे हैं, तो सब तो ज़्यादा जो हैगा अमाउंट के प्रेजेंट होंगे आ ह्यूमन बॉडी के. द मेजर कंपोनेंट्स इन आ कनैक्टिव टिश्यू आर फाइबर्स, सैल्स एंड मैट्रिक्स. The cells are loosely arranged or widely separated from each other by extracellular material. Loosely arranged or widely means एक दूसरे तो काफ़ी दूर दूर पे होंगे तो उन्होंने विच एक सैल तो दूसरे सैल दे विच काफ़ी जिहड़ा हैगा वा मटीरीयल आ एक्स्ट्रा सैलुलर मटीरीयल आ प्रेजेंट होंदा. कॉल्ड मैट्रिक्स. एक्स्ट्रा सैलुलर मटीरीयल किहड़ा जिहड़ा उन्हां दे विच प्रेजेंट होएगा एक्स्ट्रा सैलुलर मटीरीयल उन्होंने आपां बोलदे आ मैट्रिक्स, जो कि सैल्स ही सिक्रीट करते हैं. The collagen and elastin fibers provide tensile strength, elasticity and flexibility to the tissues. Collagen and elastin. Elastin तो ही अपन पता लगता कि elasticity रजे कि वो stretch हो सकते हैं, ठीक है, फिर compact हो सकते, stretch हो सकते, compact हो सकते, जिहदे करके वो elasticity कोलाजन जिहड़े हैगे ने फाइबर्स वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते, इलास्टिन आ जिहड़ी इलास्टिसिटी ते फ्लैक्सीबिलिटी है जिहड़ी वो प्रोवाइड करते हैं टिश्यूज़. मैट्रिक्स इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीटेड बाय द टिश्यू सैल्स. ग्लाइको वर्ड आ जिहड़ा रजे शुगरस लिए यूज़ करते हैं आपां. मीनस शुगर प्लस प्रोटीन्स आ जिहड़े उन्हां दा मिक्सचर है जो मैट्रिक्स सैल्स सिक्रीट कर रहे हैं. Connective tissues are further of three types. First one is loose connective tissue, second one is dense connective, and third one is specialized. Loose connective tissue is further. There are examples of loose connective tissue, that is areolar tissue and adipose tissue. This is areolar. A-R-E-O-L-A-R. Areolar. Okay. This is. And adipose tissue. Dense connective tissue is further divided into two types: dense irregular tissue and dense regular tissue. Dense regular tissue further is of two types: tendon and ligaments. Specialized connective tissue is of three types: bone, cartilage and blood. Firstly we will discuss the first type, that is loose connective tissue. Loose connective tissue has cells and fibers loosely arranged. Name indicates loose. Loosely arranged in the matrix. Areolar and adipose tissues are the examples of these tissue. Adipose tissue और जो areolar tissue है जेड़ा वो skin दे नीचे present होंदा. Adipose tissue है जेड़ा वो भी skin दे नीचे ही present होंदा. Adipose tissue है जेड़ा वो specialized होंदा to store fats. ते जो areolar tissue है जे वो skin ते muscles नू एक दूसरे दे नाल connect करदा. Second one is dense connective tissue. The cells, fibers and fibroblasts are compactly packed. Dense means density ज़्यादा है, cells आ जिहड़े बहुत ज़्यादा अमाउंट्स प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सैलुलर मटीरियल आ जिहड़ा मैट्रिक्स आ वो घट है, ठीक है. लूज दे विच की सी cells आ लूजली अरेंज एक दूसरे तो दूर दूर पई सी.
if the fibers and fibroblasts are irregular in orientation, the tissue is called dense irregular connective tissue. It is found in skin. Clear? First type is irregular and second type is regular. अगर फाइबर्स आ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡੈਂਸ ਰੈਗੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ. ਕਲੀਅਰ? here you can see ਆਇਆ ਡੈਂਸ ਰੈਗੂਲਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਜੋ फाइबर्स ने कोलाजन फाइबर्स, ठीक है, टेंडन्स भी कोलाजन फाइबर्स के ऊपर जो है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ने. आया डेंस इररेगुलर, यदि कोई भी सिमेट्री नहीं बनती, किधरे एक कोलाजन फाइबर आ जोड़ा वो किधरों जो है अराइज हो रहा, कितने जाके ख़त्म हो रहा, फिर दूसरा कोलाजन फाइबर किधरों अराइज हो रहा, इन्हां दे विच कोई भी रेगुलैरिटी नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है प्रॉपर, इस करके आप इन्हूं बोलते हैं डेंस इररेगुलर. Dense regular is further of two types, tendon and ligaments. Tendons and ligaments, these are the tissues which join bones to the different parts and bones to the bones. For example, ਟੈਂਡਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਲੇਟਲ ਮਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਲੇਟਲ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਟੈਂਡਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਨੇ ਰਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਨੈਕਟ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਟੈਂਡਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਨਸ ਤੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੈਲੇਟਲ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟ, ਤੇ ਜੋ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਸਲਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ. ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ, ਬੋਨਸ, ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਐਂਡ ਬਲੱਡ. ਤਿੰਨ ਫਰਦਰ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ. ਫਸਟ ਹੈ ਬੋਨ. ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਜੇ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਨॉन ਪਲਾਏਬਲ. ਨॉन ਪਲਾਏਬਲ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਏਅਰ ਆ ਉਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਹ मूव नहीं कर सकती, ठीक है, इन्होंने आप कंप्रैस नहीं कर सकते. एंड रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर्स. इट अकर्स इन कनेक्टिव लेयर्स कॉल्ड लैमिले अराउंड आ हार्वेसियन कैनाल. बोन्स के अंदर अजे एक कैनाल प्रेजेंट होंगी है, एक कैविटी प्रेजेंट होंगी है जिन्होंने आप बोलते हैं हावर्सियन कैनाल. आई विल शो यू. इस तरह का स्ट्रक्चर होंदा अगर आप TS कट करते हैं बोन का, बिल्कुल सेंटर दे विच एक कैविटी प्रेजेंट होंदी है जिन्होंने आप बोलते हैं हावर्सियन कैनाल. विच कैरी ब्लड वैसल्स एंड नर्व्स. इन्हां दे थ्रू जिहड़ियां नर्व्स ते ब्लड वैसल्स ने एंटर करदियां बोन्स के अंदर. बोन्स तो फर्दर जो हैगा एक दूसरे दे नाल एक बोन तो दूजी बोन तक जो हैगा वो अप्रोच कर दिया. सैकेंड है कार्टिलेज. कार्टिलेज टिशू है जिहड़ा रजे वो समूथ हुंदा समवट एज कंपेयर टू बोन्स. जिवें जिहड़े इनफेंट्स होंदे आ, इनफेंट्स ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ बोन्स ने वो कार्टिलेज ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. कार्टिलेज टिशू ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਰਮਸ ਨੇ ਤੇ ਲੈਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਡਲਟਸ. ਸੈਮੀ ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਪਲਾਏਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟਰਸ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਾਊਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਜੋ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Cartilage cells called chondriocytes are locked in the cavities and or spaces called lacunae in the matrix. इस तरह ना प्रेजेंट होंगे रजे cartilage cells. chondriocytes जिन्होंने आप बोलते हैं आर ए chondriocytes. lacunae के अंदर chondriocytes प्रेजेंट होंगे जो कि lacunae जिहड़े मैट्रिक्स के विच सस्पेंडेड होंगे.
थर्ड कनैक्टिव टिशू स्पैशलाइज कनैक्टिव टिशू है रजे ब्लड। ब्लड तुहानूं सब नूं पता है ब्लड दे विच 3 टाइप के सैल्स होंगे आ, आरबीसीज और रैड ब्लड सैल्स, इन्हों आप एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। सैकेंड होंगे ने वाइट ब्लड सैल्स जिन्होंने आप WBCs और ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। थर्ड होंगे प्लेटलैट्स और इन्हों आप बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड आ जिहड़ा मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होंदा बॉडी का, तो काफ़ी सारे सबसटांसिस की ट्रांसपोर्ट के विच हैल्प करता है। इट इज़ अ फ्लूइड कनैक्टिव टिशू। बाकी जिहड़े दोनों ने स्पैशलाइज्ड कनैक्टिव टिशूज़ ने वो की ने सॉलिड ने, तो ये है लिक्विड, ठीक है। हुज मैट्रिक्स इज़ अ फ्लूइड। मैट्रिक्स मीनस उहदे विच जो सरफेस है, सरफेस भी फ्लूइड ही है, उन्होंने आप बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप के सैल्स होंगे हैं, ठीक है। आरबीसीज, वाइट ब्लड, WBCs एंड प्लेटलैट्स। आरबीसीज दे विच हीमोग्लोबिन होंदा है। WBCs ने जिहड़े उन्होंने आप सोल्जर सैल्स बोलते हैं, अपने इम्यून सिस्टम नूं बिल्डअप करते हैं। प्लेटलैट्स ने जिहड़े वो मेनली और थ्रोम्बोसाइट्स ने वो मेनली जो हैगा आ ब्लड की क्लॉटिंग दे विच हैल्प करते हैं जो आपां नूं कोई इंजरी होंदी है। थर्ड टाइप है रजे मसल टिश्यूज़। सैकेंड टाइप सी कनैक्टिव टिश्यू, थर्ड टाइप है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू मीनस जो मसल्स सैल्स ने वो सारे उन्होंने आप कंपैक्टली बोल देंगे अपनी बॉडी जिन्नियां मसल्स प्रेजेंट आ, दैट इज़ मसल टिश्यू। कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल सेल्स और फाइबर्स। ईच फाइबर इज़ मेड अप ऑफ न्यूमरस फाइन मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स शोज़ अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स कॉल्ड सैक्रोमीयर्स। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स इन्हां दे विच क्यों प्रेजेंट होंदियां रजे, क्योंकि जो आप मसल्स नूं मूव कर रहे हैं, लाइक मैं अपनी फिंगर्स मूव कर रही हाँ, मसल कंपैक्ट होंदी है, स्ट्रैच होंदी है, कंपैक्ट होंदी है, स्ट्रैच होंदी है, उहदे लई जो हैगा कंपैक्टेशन दे विच हैल्प करदियां ने कॉन्ट्रैक्टाइल जिहड़ियां यूनिट्स ने और वैक्यूल्स ने। फाइबर्स की फॉर्म दे विच क्यों होंगे मसल सैल्स, ताकि वो ईजली जो अपन स्ट्रैच कर रहे हैं, कंपैक्ट कर रहे हैं, तो टीयर ऑफ ना होण, बस्ट ना होण सैल, इसलिए सैल्स जिहड़े फाइबर्स की फॉर्म च प्रेजेंट होंगे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स ने जिहड़ियां मायोफाइब्रिल्स दी उन्होंने आप बोलते हैं सार्कोमीयर्स। मैंब्रेन जिहड़ी हुंदी है जो प्लाज्मा मैंब्रेन सैल दे अराउंड प्रेजेंट हुंदी है, सैल मैंब्रेन। मसल सैल्स दे विच उहनूं आपां बोलते हैं सार्कोलेमा, प्लाज्मा मैंब्रेन। तो जिहड़ा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हुंदा मसल सैल दे विच रजे उहनूं आपां बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्को वर्ड आ जिहड़ा वो मसल दे नाल रिलेटेड है। फर्दर ने टाइप्स मसल सैल्स दियां। फर्स्ट है स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स नूं आपां वॉलंटरी जां स्ट्राइप्ड मसल्स भी बोलते हैं। इन्हां दे उपर इस तरह दे नाल स्ट्राइप्स प्रेजेंट होंदियां ने, बैंड्स प्रेजेंट होंदे हैं, लाइट डार्क, क्लीयर। तो जिहड़ियां मसल्स ने ये होंदियां ने स्कैलेटल मसल्स आपां इन्हां नूं बोल दिंदे आ, ये अटैच्ड होंदियां विद बोन्स। सैकेंड ने रजे स्मूद मसल्स। स्मूद मसल्स ने जिहड़ियां उन्हां दे उपर जो हैगा आ स्ट्राइप्स प्रेजेंट नहीं होंदे, इस करके आपां इन्हां नूं अनस्ट्राइप्ड मसल्स भी बोलते हैं। इन्हां नूं आपां वॉलंटरी मसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मेनली अपने फिजिकल एक्शनस दे विच इनवॉल्व होंदियां, अपने वॉलंटरी एक्शनस दे विच इनवॉल्व होंदियां, इसलिए वॉलंटरी ने। ये इनवॉलंटरी ने क्योंकि ये अंदर जो अपने इंटरनल ऑर्गनस ने, विस्ट्रल सॉफ्ट ऑर्गनस आ उन्हां दे विच प्रेजेंट होंदे हैं, जो कि फिजिकल एक्शनस दे विच इनवॉल्व नहीं होंदे। देखो इन्हां दे उपर कोई भी स्ट्राइप नहीं है। आ शीट है, मतलब एक बंडल है, तो सिंगल जो हैगा स्मूथ मसल सैल शो किया हुआ। नैक्सट ने कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के उपर भी तुसीं देख रहे हो रजे लाइट डार्क बैंड्स प्रेजेंट ने। ये जिहड़े बैंड्स ने इन्हां करके शो होंदा है कि कार्डियक मसल्स आ जिहड़ियां वो भी स्ट्रेटेड मसल्स ने जां स्ट्राइप्ड मसल्स ने। ये स्पैशलाइज्ड स्ट्राइप्ड मसल्स ने। कार्डियक वर्ड आ जिहड़ा रिलेटेड हुंदा विद हार्ट। स्पैशलाइज्ड मसल्स ने जो हार्ट दे विच प्रेजेंट हुंदियां ने। इन्होंने आप स्ट्रोंगेस्ट मसल्स बोलते हैं बॉडी दियाँ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 24 आवर्स वर्क करदियां ने। नैक्सट अपना रजे फोर्थ टिश्यू है न्यूरल और नर्वस टिश्यू। इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। न्यूरल टिश्यू दे विच रजे 2 चीज़ां होंदियां ने। न्यूरल वर्ड आ मीनस जो कि अपना नर्वस सिस्टम आ पूरा बॉडी का वो कंट्रोल कर रहा टिश्यू, जिहड़े तो फॉर्म होया है नर्वस सिस्टम उन्होंने आपां बोलते हैं न्यूरल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अपनी सेंसेशन है जिहड़ी वो इस टिश्यू के थ्रू फॉर्म हुई है।
न्यूरॉन्स और नर्व सैल्स एंड न्यूरोग्लियल सैल्स। न्यूरॉन्स है जे न्यूरॉन्स तुसीं 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰਦਰ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਊਰੋਨਸ ਆਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਨਿਊਰਲ ਟਿਸ਼ੂ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ। ਨਿਊਰੋਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ ਮੀਨਸ ਨਿਊਰੋਨਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਆਰਗਨਸ ਤੱਕ, ਬੋਡੀ ਆਰਗਨਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਨ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸਾਈਟੇਬਲ ਨੇ ਰਜੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਪਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਪਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਨਿਊਰੋਨ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਆਰਗਨ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਔਨ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਊਰੋਗਲੀਅਲ ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੈਲਸ ਨੇ ਨਿਊਰਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਗਿਵ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਨਿਊਰੋਨਸ ਬਟ ਆਰ ਨਾਟ ਐਕਸਾਈਟੇਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਮੈਸੇਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਜੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਨਿਊਰੋਗਲੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਊਂਡਡ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਰੋਨ ਦੀ ਐਕਸਨ ਸੈਲ ਬॉडी ਵਿਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਡੈਂਡਰਾਈਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਰੋਗਲੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਰੋਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਕੈਰੀ ਮੈਸੇजेस। This is all about our topic animal tissue and our chapter number 7, that is animal tissue or structural organization in animals. With this your chapter is completed. Next chapter we will discuss in next video. So for today up to this only bache. Thank you. Have a nice day.